أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ویک ہم نے مدینہ بک 2 اسٹارٹ کی تھی، اس کا پہلا لیسن کا پہلا حصہ کیا تھا بیتی، اور اس لیسن میں ہماری مرکب اضافی کی پریکٹس ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مرکب دو چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے مرکب اضافی کے بھی دو حصے ہیں، پہلا حصہ مضاف اور دوسرا مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ مضاف کے اوپر نہ تنوین ہوتی ہے اور نہ ال ہوتا ہے، اور اعرابی ہلکا ہوتا ہے، اور یہ تینوں اعرابی حالتیں قبول کرتا ہے، جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اور مرکب اضافی کا جملے میں اسٹیٹس دیکھنے کے لیے ہمیں مضاف کے اعراب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہینڈ ریز کر لیجئے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ سمینا جی مائک انمیوٹ کیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاذہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل۔ الحمدللہ جی۔ سمینا جی ہم نے یہاں سے سٹارٹ کرنا تھا، اس جگہ سے۔ جی پڑھیں۔ ایک اچھا جی یہ پڑھیے، ہذہ غرفۃ اسٹارٹ اخی، کیجئے۔ ہذہ غرفۃ جی اخی، حاضر ہی کیا ہے؟ ہذہ اس میں اشارہ ٹھیک ہے، ہے۔ تو مجھے مذکر مؤنث، مؤنث، مؤنث واحد کا اس میں اشارہ قریب۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور غرفہ تو اخی، غرفۃ اخی مرکب اضافی ہے۔ اچھا تو بتائیے ذرا مجھے اجزا بتائیے۔ غرفۃ اخی، غرفہ تو کو کیا بنائیں گے آپ؟ غرفہ غرفۃ تو کو کیا مضاف بنائیں ہوگا، گے؟ مضاف ہوگا، اور یا ہذہ غرفۃ یہ مرکب اشاری ہوگا۔ اچھا نہیں دوبارہ بتائیں۔ استاذہ تھوڑا کنفیوژن ہے، ہذہ غرفۃ یہ مرکب اشاری ہوگا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اس کو ہم کریکٹ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کو یہاں پر وعلیکم السلام، ویلکم ویلکم۔ بوٹلیں بھر دو نا۔ اگر مرکب اشاری میں اشارے سے کے بعد آپ کو کوئی معرف باللام اسم نظر آئے تو وہ مشار علیہ ہوتا ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ جبکہ اوکے۔ یہاں ہمیں اشارے کے بعد ایک ایسا اسم نظر آ رہا ہے جو اعراب میں ہلکا ہے، اور ہلکا بالکل کیسے ہے کہ نہ اس کے اوپر تنوین ہے اور نہ ہی ال ہے، ال تو ہے، پھر ہم اسے کیا سمجھیں گے، یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہوگا پھر۔ یہ مضاف ہوگا۔ اور اخی کو ہم کیا بنائیں گے؟ اخی مضاف ہے، لیکن یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہوگا۔ جی بالکل صحیح۔ سو غرفت مضاف، اخو جو ہے مضاف الیہ ہوگا، لیکن یہ دوبارہ مضاف بنے گا اخو یا متکلم کے لیے، مضاف الیہ کے لیے۔ جی تو یہاں یہ اس کو ہم اگر کر دیتے ہیں الگ سے، اخو اور ساتھ میں یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے، جی اخو جی پلس جائے متکلم، تو جب مضاف دو پوزیشنز لیتا ہے نا، مضاف وہی جی، آپ کا اسم مضاف بھی بنتا ہے اور مضاف الیہ بھی مضاف بنتا ہے،
جی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہلکا ہوتا ہے، اس کے اوپر پر ال نہیں آتا، ٹھیک ہے، جی اور وہ اعراب میں ہلکا ہوتا ہے اور وہ ہوتا مجرور ہے. مجرور، جی اس بالکل. وجہ سے یہ ہمارا جو ہے اخی، یا کی وجہ سے بھی یہ مجرور ہو رہا ہے. یا اپنے سے پہلے زبر قبول نہیں کرتا، پیش قبول نہیں جی کرتا، جی. تو یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے گا صرف اس مرکب اضافی کا ترجمہ بتا دیجئے. میرے میرے بھائی کا گھر، میرے بھائی کا کمرہ. میرے بھائی کا کمرہ، ٹھیک ہے، اب پورا ترجمہ کیجئے. یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کیا. اب آپ مجھے اس میں مبتدا اور خبر بتا دیجئے. مبتدا حاضہ مبتدا ہوگا، پیچیدہ مرکب اضافی خبر ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا، حاضر ہی کی جگہ آپ دور کا اشارہ لگا دیجئے، کیا آئے گا؟ حاضہ، بٹ حاضہ نہیں، نہیں. سوری سوری سوری، تل کا. ہاں، تل کا. تل کا غرفہ. تو، پھر اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں، تبدیلی تو نہیں آئے گی کیونکہ دور کا اشارہ ہوگا تو ہوں مرکب اضافی ہوں سیم ہی ہوگا. ٹھیک، ٹھیک ہو گیا. اگلا جملہ پڑھیے. وَتِلْكَ غُرْفَةُ أُخْتِي. ہوں واو حرف عطف، تل کا ٹھیک ہے، دور کا مؤنث اشارہ مؤنث ٹھیک ہے. واحد کا. غرفۃ ہوں اختی مرکب اضافی ہو کر پیچیدہ مرکب اضافی. غرفۃ اختی کا ہوں ترجمہ میری بہن کا کمرہ، ٹھیک اور ہے. پورا اور ترجمہ وتل کا غرفۃ اختی، اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. ہوں، اچھا، اختی کو ذرا اس کو ذرا کھولیے گا. اختن سے اختو، اور یا ہوں متکلم اختی. ٹھیک ہے، جیسے اخو تھا اسی طرح سے یہ ہو گیا اختو، اور اختو سے یہ ہو گیا اختی، اختی، جی بہن کا کمرہ اختی، اور پھر یا متکلم میری. ٹھیک ہے، جی کلیئر ہوا نا؟ جی بالکل استاذہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آگے کیجئے. غرفۃ اخی کبیرۃ وغرفۃ اختی صغیرۃ. غرفۃ اخی مرکب اضافی، پیچیدہ مرکب اضافی، اور جی کبیرۃ نکرہ اس میں ہے. تو میری بہن کا کمرہ بڑا ہے. ہوں وغرفۃ اختی صغیرۃ، واو حرف عطفہ. عاطفہ، حرف عاطفہ. ہوں غرفۃ اختی مرکب پیچیدہ مرکب اضافی، صغیرۃ ہوں نکرہ اسم. تو میری بہن کا، ہوں سوری، میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں آپ کو کتنے جملے نظر آ رہے ہیں اس جملے میں؟ 2 جملے ہیں. پہلا غرفۃ جملہ کہاں تک اخی، ہے؟ غرفۃ اخی کبیرۃ پہلا ہے، واو حرف عطف، غرفۃ اختی صغیرۃ دوسرا جملہ. ہوں ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے اس میں، جیسے ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ اخو اور اختی، جی یہ مذکر مونس ہو گئے، جی اپوزٹ آ گئے، ٹھیک ہے. جی اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کبیرتن اور صغیرتن، جی یہ بھی اپوزٹ ہے. یہ اپوزٹ ہے، یہ مذکر مونس ہو گئے، جی اخی اور اختی، ٹھیک ہے. اور کبیرتن، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ مونس اسم ہے یا مذکر؟ مؤنث، مؤنث ہے. مؤنث ہے. تو یہ مونس کیوں ہے؟ آ،
مربوطہ کی وجہ سے تا جی تا مربوطہ کی وجہ سے، اور یہ غرفتوں کی وجہ کون سے سے ہے. کام غرفتوں کی وجہ سے، غرفتوں کی وجہ سے ہے. غرفتوں کی وجہ سے ہے. جی تائم مربوطہ تو اس کی پہچان ہے نا، پہچان ہے. جی جی پہچان غرفتوں ہے. کی وجہ تو یہ غرفتوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ بتا رہے ہیں کہ میرے بھائی کا کمرہ، کمرے کی ہم یہاں آپ سمجھیں کہ صرف بتا رہے ہیں نا سے. کہ جی کمرہ جی میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے. اسی طرح سے غرفتو، کیونکہ کمرے کی بات ہو رہی ہے اور یہ مؤنث ہے غرفتو، تو اس کی صرف بھی یا اس کی خبر بھی آپ کہہ لیں، یہاں تو اس کی خبر بن کے مؤنث آ رہا ہے ہوگی. نا، جی اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی. کیونکہ مبتدا اور خبر میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے. جی اگر مبتدا معرفہ مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، ٹھیک ہے نا. اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث. تو یہاں غرفتو مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی کبیرتن مؤنث ہی آئے گی. اور ہمیں یہاں پر ایک ہم نے ورڈ اپوزٹ بھی جو ہے آج سیکھ لیا دوبارہ سے، کبیرتن صغیرتن. صحیح. اچھا جزاک اللہ خیر سمینا جی، ہینڈ بھیا آن کی کر لیجیے. روبینہ جی جزاک آپ اللہ. آئیے. جزاک اللہ فیک. روبینہ جی مائک انمیوٹ کیجیے. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی غرفت اخی امام غرفتی و غرفت اختی امام المطبخی. ٹھیک ہے. جی بتائیے غرفتو کیا بن رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میم مبتدا. نہیں ابھی مبتدا کو رہنے دیں، آپ پہلے پہچانیں گی کہ جو اسم ہے، اسم ہے یا فعل ہے. پہلے تو ہم یہ چیز پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میم اسم ہے. اسم ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اسم کی اعراب کس طرح کی ہے. اعراب ہم کسے کہتے ہیں؟ جو آخری حرف پہ زیر زبر پیش ہو. آخری حرف. جی بالکل. تو ہم نے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شروع میں بھی آ رہا ہے لیکن اس کی اعراب ہلکی ہے. تو تو جب بھی یہ آپ کو کسی اسم کی اعراب ہلکی نظر آئے تو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے؟ مضاف و مضاف الیہ. بالکل آپ نے اسے اگلا والا اسم دیکھنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے کیا آ میم. رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جی پھر میم. آپ کو اس کے ہلکا ہونے کی وجہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو چلیے بتائیے. میم غرفت اخی میرے بھائی کا کمرہ. ٹھیک ہے. کیا بنا، کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. پیچیدہ مرکب اضافی. جی میم پیچیدہ مرکب اضافی. مرکب اضافی. پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں جو اس کا درمیان والا حصہ ہے وہ مضاف پہلے والے اسم کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے اور بعد والے کے لیے مضاف بن رہا مضاف ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پیچیدہ مرکب اضافی. ہمیں تو دہرا لیتے ہیں نا، سب کو ذرا سمجھ آ جائے گی اچھی طرح سے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے آپ ذرا مجھے، یہ بتائیے جو میں نے اس کو سینٹر کیا اسے بتائیے یہ کیا ہے؟ میم یہ جو امامہ ہے یہ ظرف ہے، اور ٹھیک غرفتی ہے. غرفتی امامہ کے لیے مضاف الیہ بنے گا، اور غرفتی پھر ٹھیک وہی ہے. مضاف الیہ بن کے پھر اس کے لیے ہاں یہاں ہم اس کو پیچیدہ مرکب نہیں کہیں گے. نہیں میم اس کو پیچیدہ مرکب نہیں کہیں گے. امامہ کو ظرف ہم کہیں گے، اس کو مضاف، ظرف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے. جی کیونکہ یہاں یہ ہمارے پاس ایک پورا کا پورا آ رہا ہے، مرکب اضافی. مرکب مرکب اضافی آ رہا ہے. جی میم. ٹھیک ہے. تو امامہ ظرف ہو گیا، اس کے بعد مضاف اور مضاف الیہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جی میم. ایسے ٹھیک ہو گیا. یہ جڑ گیا ساتھ. اچھا چلے. امامہ
गुरफती। और ज़र्फ जो है अमूमन किस हालत में होता है? मैम नसब में। भी हालत अब नस्ब होती है। और हमने उसको, और वो जुमले में क्या बनता है? ज़र्फ मुज़ाफ इलैह को हम क्या कहते हैं? मैम मुताल्लिक भी नहीं, मफूल बनते हैं। इसको नहीं 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 नहीं, देखिए अभी हम जुमला इसमिया कर रहे हैं ना, तो जुमला इसमिया में ज़र्फ मुज़ाफ इलैह, वैसे तो ज़र्फ मुज़ाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी बनते हैं, लेकिन ऐसा मुरक्कब इजाफी जिसका मुज़ाफ ज़र्फ हो, वो उसको हम शिबु जुमला कहते हैं। मैम शिबू जुमला और मुताल्लिक एक नहीं होते? नहीं नहीं, सुन लेना, पहले आप उसको उसका नाम याद रखें ना, तो वो ठीक है मैम। शिबु जुमला कहलाते हैं। ठीक है, शिबु जुमला कहलाते हैं। अब ये ठीक है शिबु मैम। जुमला और जार मजरूर जो मुरक्कब जारी है, ये दोनों मुतल्लिक बनते हैं। जुमला इस्मिया होगा तो खबर के मुतल्लिक, और जुमला फेलिया होगा तो फेल के मुतल्लिक। ठीक है तो मैम। अभी जब मजीद आगे पढ़ेंगे तो ये और भी 8 चीजें हैं जिनके मुतल्लिक ये होते हैं। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम जानते जाएंगे कि ये किस किस चीज के मुतल्लिक होकर आते हैं। लेकिन इस वक्त हमने इसको जुमला इस्मिया में पढ़ा, और अभी जुमला फेलिया में हमने इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये मुतल्लिक होकर आते हैं। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि जुमला इस्मिया के 2 पार्ट होते हैं। मुब्तदा खबर। बताएंगे आपको? मुब्तदा मुब्तदा खबर। खबर, ठीक है। और खबर अमूमन उसकी एराब क्या नकरा। होती है? नकरा। नकरा होती है। नकरा होती है। अब मुझे बताएं कि आपको यहाँ इस जुमले में कोई नकरा खबर नजर आ रही है? गुरफतु। नहीं मैम, कोई नजर नहीं आ रही। नहीं, कोई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ये दोनों ही आपको मुरक्कब इजाफी नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, मैम। तो जी अब जी। इस सूरत में हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि अमामा ज़र्फ वाला जो है वो तो मुब्तदा नहीं बन सकता। तो जो इसका पहला हिस्सा है, इसे हम क्या बना देंगे? गुरफातु अखी को मुब्तदा बना देंगे ना, मुरक्कब इजाफी होकर। जी जी। और इसको खबर। इसको हम, हाँ खबर, और खबर हम कैसे बनाएंगे इसको? खबर की जब गैर मौजूदगी में आ जाए ज़र्फ मुज़ाफ या जार मजरूर, तो हम उसको कायम मुकाम खबर कायम। बनाते हैं। कायम मुकायम खबर। ठीक है, कायम मुकाम खबर बन गया ये। तो यहां तक देखा जाए तो हमारा एक जुमला जो है वो मुकम्मिल हो जाता है। ठीक है, जी अब मैम। आपने देखा कि दरमियान में क्या आ रहा है? वाओ अत, अतफ। आतिफा, अतफ आ रहा है। ठीक है, अब अगला जुमला कीजिए। व गुरफतु उख्ती हम्म, अमामल मतबखी। ठीक है। वाओ अच्छा, अतफ। और गुरफत उख्ती, गुरफतु उख्ती मुजाफ मुजाफ इलैह। ठीक है। और बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर आ गया जो था गुरफतु अखी, यहाँ हो गया गुरफतु उख्ती। यहाँ मेरा भाई था, यहाँ यहाँ मेरी बहन आ गई। बहन आ गई। ठीक है, ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अमामल मतबख बखी। ये बताइए क्या है? मैम ये वही फिर शिबू जुमला बनेगा। हम्म, कायम शुभ मुकाम जुमला पर। बनेगा। ज़र्फ मुज़ाफ इलैह कायम मकाम का, शाबाश। अच्छा, तो अब आप इस पूरे जुमले का जो है तर्जुमा कीजिए। और मेरी बहन का कमरा बावर्ची खाने के सामने है। हम्म, जी, यहाँ से कीजिए तर्जुमा पूरा। मेरी बहन का कमरा। मेरे भाई का, सॉरी। शुरू से कीजिए ना। हम्म, हम्म, मेरे भाई का कमरा बावर्ची हम्म, खाने के सामने है। नहीं नहीं बेटा, यहाँ से कीजिए ना। मेरे भाई का कमरा गुरफती, मेरे भाई का मेरे कमरा। कमरे, मेरे भाई का कमरा मेरे कमरे के सामने है। ये जी मैम। गुरफती मेरा कमरा हुआ ना। जी मैम ठीक है ठीक है। वो नजर से वो हो रहा है। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। मेरे मेरे कमरे के सामने है।
ठीक है मैम, मेरे कमरे के सामने है और मेरे भाई का कमरा किचन के सामने है। मेरी बहन का कमरा बहन का कमरा किचन के सामने है। किचन के सामने है। तो यहाँ उन्होंने हमें पेचीदा मुरक्कब इजाफी की भी प्रैक्टिस करा दी और ज़र्फ मुज़ाफ की भी करा दी। ठीक है, जी मैम। जज़ाकिल्लाह खैर। अब हम किसी और को कॉल करते हैं ताकि सब पार्टिसिपेट कर सके ना। आफरीन, माइक अनम्यूट कीजिए। जी बाजी। जी, आ जी जाइए। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से। ठीक है, अभी आपने जो है ना इतना सा करना है। ठीक है, जी जी। पढ़िए। ली अखुन वाहिदुन इस्मुहु पहले जुमला पढ़ उसामतु। लीजिए। जी। ठीक है, ली अखुन अच्छा, वाहिदुन इस्मुहु उसामतु। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आपको ली क्या लग रहा है। जी ला ली जो है ये जार मजरूर। जी। ठीक है, जार मजरूर। तो जी इसका तर्जुमा क्या करेंगे हम। मेरा, मेरे लिए या मेरा। ठीक है, अच्छा। हमने पढ़ा था कि जब ठीक है, चले आगे देखते हैं। जी। अखुन वाहिदुन को आप क्या बना रही हैं। अखुन क्या है। इसको मौसूफ सिफ्त बनेगा। हम्म, अच्छा। हमने मौसूफ मौसूफ सिफ्त। सिर्फ कैसे समझा, कैसे समझा मौसूफ सिर्फ है, कैसे पहचाना। भाई दोनों एराब दोनों के सेम है। दोनों के इराब सेम है। ठीक है, जी। और फिर वसत भी। मुजक्कर मुअन्नस। जी अ, वसत दोनों में। भी। जी दोनों भी सेम है, दोनों भी जो है नकीरा नकीरा है। ठीक है, जी बहरहाल अदद में पे भी। हम जी कौन सी चार इसम के जो चार पहलू हैं वो हम देखते हैं जब वो इसम हमें लिखा हुआ जी नजर आता है। तो क्या जी क्या देखते वो हैं हम। जी वसत, अदद, जिन्स, एराब। ठीक है, यहाँ जी ये हमें समझ आ रही है कि ये जी एक जैसे हैं। ठीक है, जी जी तो इसलिए हमने जी कहा कि ये, आपने कहा कि ये मौसूफ सिफ्त बन मौसूफ सिफ्त बन रहे हैं। अच्छा, इतने से का तर्जुमा, इसका सिर्फ मौसूफ सिफ्त का तर्जुमा कीजिए। अखुन वाहिदुन, एक, एक भाई। एक भाई। अच्छा, अब ये जार मजरूर जो है ये जुमले के आ गया शुरू में। जी ठीक है, तो जब कोई चीज अपनी जगह बदल लेती है तो उसकी कोई वजह जी होती है। जी ठीक है, अपना मुकाम से अगर कोई हट जाए तो जी किसी वजह से वो हटता है ना वहां से। जी बाजी। अब ये ली जो है इसकी जगह थी मुब्तदा खबर के बाद, लेकिन ये जी सबसे पहले आ गया। और हमें जी नजर आ रहा है जुमले में कि अखुन वाहिदुन जी नकरा आ गया। तो अब जी यहाँ हम क्या करेंगे। अखुन वाहिदुन, ली को तो हमने बना दिया खबर मुकद्दम। जी ठीक है, और अखुन जी वाहिदुन को हम क्या बनाएंगे। मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा बनाएंगे, हाँ, मुब्तदा मौखर। अच्छा, जी आम अमूमन शुरू में जब मुब्तदा आता है तो वो मुअर्रफ बिल नाम के साथ होता है, लेकिन जब जी हमने मुब्तदा मौखर होकर आता है तो फिर वो नकिरा आता है। अमूमन वो नकिरा होता है। ठीक है, सही। जी अच्छा। अब यहाँ अब हमारे तर्जुमे में थोड़ा सा फर्क आएगा। तर्जुमे में कैसे जी फर्क आएगा, कैसे तर्जुमा करेंगे अब ली अखुन वाहिदुन का। क्योंकि अखुन को अगर हम अलग भी ले लें तो जी अखुन का हम कैसे तर्जुमा करते हैं। जब हम किसी उसको लेते हैं नकिरा इसम को, ठीक है जी ना, जी तो हम उसको उसका तर्जुमा कैसे करते हैं, कोई या एक। एक। जी ठीक है, अब अखुन जी तो ऑलरेडी हमें पता है कि अखुन वाहिद ही है ना। अब जी आगे फिर वाहिदुन भी लिखा हुआ है। जी एक भाई, एक भाई। अब हमने, अब यहाँ हमारा लहजा जो है ना उसमें थोड़ा हाँ, जो है तब्दीली आएगी। ठीक है, एक तो ही कैसे भाई। हम इसका जी तर्जुमा करेंगे। हाँ, एक। मेरा जी एक ही भाई है। मेरा एक ही भाई है। तो इस तरह जब हम्म, खबर मुकद्दम हो जाती है या जार मजरूर हम्म, पहले आ जाता है तो फिर आपके हम्म, जुमले में स्ट्रेस आता है, आपका लहजा तब्दील हो जाता है। ठीक है, जी अच्छा। जी अब देखिए,
अगला पार्ट देखिए, इसमें क्या है? इस्मुहु उसामतु, उसका नाम उसामा है। अच्छा, हम्म, अब इसको भी आप जो है ना अलग अलग कीजिए। जी। इस्मुहु बाजी इसमें मरकबे, जी, ये मरकबे इजाफी है। जी इस्मु, उसमुन था, ये मुजाफ होने की वजह से एराब हल्का हुआ, इस्मु हुआ। और जी ठीक हाजम, हो गया। हाँ, जी। इसमें फिर जो है ये जमीर जो है ये मजरूर के लग गई, तो ये मुजाफुन इलैह बन हम्म गया। इस्मुहु, मुजाफ मुजाफुन इलैह मिलकर फिर ये मुब्तदा बना। जी, उसका नाम, उसका नाम ठीक हो गया। जी। फिर ये हो गया। उसामतु, इसको ऐसे मुजाफ मुजाफ पहले होकर अ, ये आप इसको यहाँ जुमले, अब ये एक और जुमले, जुमले के अंदर एक और जुमला आ रहा है। जी, ठीक है, तो जी, अब आप इसको कैसे देखेंगी? अगर ये सिर्फ इतना सा जुमला हो, इस्म हो जी, उसामा तो जी। इसमें आप मुब्तदा खबर कैसे बनाएंगी? जी, इस्मुहु को हम मुब्तदा बना लेंगे, मुरक्कब इजाफी होकर मुब्तदा, और उसामतु इसकी खबर। ठीक है, ठीक है, दोनों तरह से बन सकता है। आप उसामा को मुब्तदा भी बना सकती हैं और जी, इस्म को खबर भी। लेकिन हमें ऐसे आराम से बात समझ में आ रही है कि मुब्तदा पहले आ रहा है और खबर बाद में आ रही है, तो हम आराम जी, से इसम अलम मुब्तदा भी बनता है और खबर की जगह के ऊपर भी आता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका तर्जुमा जी। जरा दोबारा कर दीजिए। इस्म उसामातु का, उसका नाम उसामा है। उसका नाम उसामा है। वेरी गुड। अब आप एक दफा इस पूरे जुमले का तर्जुमा कर दीजिए हम्म, इसका। जी। अली अखुन वाहिदुन इस्मुहु उसामा, तो मेरा एक ही भाई है, उसका नाम उसामा है। वेरी गुड। चलिए, इसी पैटर्न पर हमारा अगला जुमला भी है, कीजिए। जी, हम्म जी। वली उख्तुन वाहिदतुन, इसमें भी जो है वाओ हरफ अतफ है, और ली जो है ये है, जार मजरूर, ली जो है ये ठीक जार है, मजरूर होकर खबर मुकद्दम होगा। और ठीक है, उख्तुन वाहिदतुन जो है ये मौसूफ सिफ्त होकर के ये मुब्तदा मुअख्खर होगा। ठीक है, शाबाश। और आगे हम्म। देखिए। इस्मुहा सुआदु, उसका नाम सुआद है। इस्मु, ये फिर अच्छा, इस्मुहा में ये मुरक्कब इजाफी है। इस्मु जो है मुजाफ है, हा ज़मीर मुजाफुन इलैह है। मुजाफ मुजाफुन इलैह ठीक से है, मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर मुब्तदा, और सुआदु हम्म, इसकी खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। उसका नाम सुआद ठीक है। है, ठीक है, आप पूरे जुमले मेरी, का तर्जुमा करें। जी, मेरी एक ही बहन है, उसका नाम सुआद है। ठीक है। अब देखें, यहाँ आपको फर्क पता चल गया कि जब जी, यहाँ पर था अखुन मुजक्कर, तो उसकी सिफ्त भी आपने देखा कि मुजक्कर थी। यहाँ उख्तुन मुन्नस है तो उसकी सिफ्त भी मुन्नस आ मोहन, गई। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि जी, अखुन मुजक्कर है, तो यहाँ हमने देखा कि जो जमीर आई है वो वाहिद मुजक्कर मुजफ्फर की के, जमीर है। और यहाँ इस्मुहा, इससे हमें पता चल रहा है कि स्वाद मुअन्नस नाम है ना, तो यहाँ जी, वाहिद, मुअन्नस की जमीर आई है। ठीक है, जी, अच्छा, ठीक हो गया। जज़ाकिल्लाह खैर। जल्दी से जी, कोई और आ जाए, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, हमारी क्लास लिंक खत्म होने वाला है। जरीना जी आप आ जाइए, जी सर, बस अस्सलाम दो वालेकुम। चार मिनट है मेरे पास, हमने ये दोनों जुमले मुकम्मल करने हैं। जी, कीजिए। एक मिनट, हाँ जी। अभी वो उम्मी जी, फी तिलकल गुरफतिल कबीरती। दोबारा पढ़ें, एराब से ही पढ़ें। जी सर। हम्म अभी अभी वो उम्मी फी तिलकल गुरफतिल अभी कबीर। देखें, 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 एक मिनट रुक जाए। ये आप इसको समझें, ये है, ये था अबू प्लस या, तो फिर आप या को अभी, लंबा करेंगी ना, जी जी, या अभी, की वजह से इसके नीचे जेर आ गया ना, तो फिर जी कहेंगे जी, अबी व अभी उम्मी। वो उम्मी, जी ठीक है, जी ताकि इससे पता चलेगा कि आप अपने जी, अम्मी अब और अब्बू के बारे में बात कर रही हैं। ठीक है, जी
ठीक है। ठीक है, तो ये मुरक्कब इजाफी हो गया। ठीक है। अबू जी उस्ताद। जो है वो मुजाफ और जाए मुतकल्लम मुजाफ है। इसी तरह से उम्मी में उम्मुन और जो है वो उम्मू हो गया मुजाफ, और जाए मुतकल्लम मुजाफ है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप कि ये आगे क्या है, फी क्या है? ये हरफ जर है। हरफ जर है। ठीक है, आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। तिलकल गुरफतिल कबीरती। तिल का क्या है? तिल का इशारा है, दूर का। कौन सा? दूर का मुज़क्कर है, मुअन्नस में बताइए ना। मुअन्नस है। मुअन्नस है, दूर का इशारा है। अच्छा, अल गुरफती को क्या बनाएंगी आप? अल गुरफती, अल गुरफती अल कबीरती दोनों मुरकबी तौसीफी होकर। नहीं, अभी आप मुझे सिर्फ ये बताइए इतना। अभी आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, तिल कल गुरफती आपको क्या समझ आ रही है? इशारा और मुशारुन इलैह। इशारा और मिशारुन लय। कैसे आपने पहचाना कि ये मिशारुन लय है? जर में है ना तो और अलिफ लाम भी लगे हुआ है। अच्छा, तो मिशारुन लय की पहचान तो जर में होना नहीं है। हाँ अल गुरफती, क्योंकि इशारे के बाद आपको मुअर्रफ बिल लाम इसम नजर आ रहा है, तो आप जी कहेंगी कि ये मिशारुन लय है। जी तो तिल कल गुरफती मिशारुन लय, और इशारा मिशारुन लय बन गए, मुरक्कब इशारी बन गया। जी जी। ठीक है, आप इसके नीचे जो जेर है ना वो क्यों है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि मुरक्कब इशारी में आपका ना वो शायद आपने हैंड फ्री लगाया हुआ है। नहीं नहीं सर। वो अच्छा, उसकी आवाज आ रही है ना आपकी इस तरह से। जी अच्छा, तो हमने पढ़ा था कि इशारों लय के इराब को देखकर हम इशारे का इराब पहचानते हैं, क्योंकि इशारा तो जी मबनी होता है। जी ठीक है। जी सर। ये ना जरिए किसी का माइक, आपके माइक में से ही आवाज आ रही है। जीनत फातिमा, आप नहीं भी माइक सर। म्यूट कीजिए। अच्छा, जी हमारा लिंक खत्म होने वाला है। अच्छा, तो हमने पढ़ा, जैसे आपको मैंने बताया कि हम इशारों लय से इशारे का इराब पहचानते हैं। अब ये मजरूर है, तो ये क्यों मजरूर है? अब हम इससे पीछे देखेंगे कि क्या है। इशारे से फी है पहले ना, क्या है? फी ई हरफ है। जर है ना, जी, जर इस आया। वजह से जी जर आ गया। गुरफत अच्छा, आएगा जी। इसके बाद हमने ये देखा कि एक और इस्म है जो कि हालत जर में नजर आ रहा है। जी ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ये मुअर्रफ बिल लाम के साथ है, और दोनों मुअन्नस हैं, दोनों जी। मजरूर हैं, दोनों वाहिद हैं। तो हमने इसको पहचाना चारों पहलुओं से कि ये एक जैसा है सब कुछ। तो ये कौन सा मुरक्कब है ना? मुरकबे तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। अब ये मुरक्कब तौसीफी किस जगह पर आ रहा है? ये मुब्तदा हो गई या खबर होगी? नहीं 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 नहीं, अभी तो हम वहां गए ही नहीं ना। जी जी तिलका के बाद आपको मुअर्रफ बिल लाम इसम नजर आ रहा है। हम जी आपका जी। मुरक्कब तौसीफी पूरा का पूरा मिशारुन और अल्लाह की जगह पर आ गया। मुशारून, मुशारून इलैह। ठीक है, अब ये जी पूरा जो है मज- तिलका के लिए क्या हो गया, फी के लिए क्या हो गया? ये पूरा मुरक्कब इशारी फी के लिए क्या हो गया? फी तो जार मजरूर है ये। फी तो जा रहा है ना। जी जी। ठीक है ना, जार फी मजरूर। तो जा रहा है। जार। जी तो ये पूरा का पूरा मुरक्कब जो इशारी है वो उसके लिए क्या हो गया? मजरूर हो मजरूर। गया। ठीक है जी जार मजरूर। जी जी, ये पूरा का पूरा फी के लिए मजरूर हो गया। अब हमारे जुमले में फी तिलकल गुरफतिल कबीरती पूरा का पूरा मुरक्कब इशारी बन गया, और मुरक्कब इशारी बन गया। अब मुझे बताइए कि आप अभी और उम्मी को जुमले में क्या बनाएंगी? ये ये तो जार मजरूर, ये मुब्तदा हो गया, ये मुरकब दोनों इजाफी मुब्तदा हो गए जी, हो दोनों मुरक्कब इजाफी होकर गया। मजरूर ये शिबु जुमला होकर खबर बन रहा है।
हाँ, ये शिबु जुमला खबर हो गया। इसमें मुब्तदा में ये वाव अतफ होने की वजह से ये दोनों जो हैं वो मुब्तदा हो गए और ये आगे हमारा शिबु जुमला खबर आ गया। खबर। अब इसका तर्जुमा कर दीजिए जल्दी से, टाइम कम है। जी, मेरे जी। अब्बू और मेरी अम्मी हम्म। फी मैं दिल का वो बड़े हम्म। बड़े गुरफता ठीक है। कमरे बड़े कमरे में है बड़े कमरे में, उस है बड़े कमरे में है। उस देखिए दिल हम का वो इशारा ये वो उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं ना। जी मेरे उस बड़े अब्बू कमरे मेरे अब्बू और मेरी अम्मी उस बड़े कमरे में है। ठीक है। जी लास्ट जी वाला मैम, जुमला ये जो है ये आप पढ़िए। अना उहिब्बु वाला। जी। जी, अना उहिब्बु अबी व उम्मी व उहिब्बु अखी व उख्ती। अच्छा, इसको आप हाफ पढ़िए। अना उहिब्बु अबी व उम्मी। हम्म। अना अना क्या है? मुब्तदा। नहीं नहीं, अना खुद क्या है, क्या पहचानेंगे आप? इसम है, फेल है, हर्फ है, जमीर है? ये तो क्या है? जमीर जमीर है ना मैम, जमीर। अना। कौन सी जमीर है? ये रफा नस्ब जर? मुतकल्लिम, जमीर मुतकल्लिम। जमीर मुतकल्लम। मुतकल्लम है तो वाहिद की है, जमा की है? ये सब वाहिद की, मतलब। ये वाहिद की है ना, बस। वाहिद की हो गया, ठीक है। अच्छा, रफा की है, नस्ब की है, जर की है? ये कौन सी जमीर है? रफा। रफा की है। रफा की जमीर जो होती है वो क्या बनकर आती है? मुब्तदा। मुफ्तदा बनती है। क्योंकि हालत रफा में होती है, हालत रफा में मुफ्तदा जी, बनता है। ठीक है। अच्छा, ओ तो हिब्बू मैम क्या खबर क्या? खबर खबर होती है ना हालत रफा में। खबर भी हालत रफा में होती है, मुफ्तदा भी हालत रफा में होता है, हम्म। दोनों। लेकिन अमूमन खबर नकरा होती है और अमूमन मुब्तदा मारफा होता है। ठीक। जी, अच्छा, ओ हिब्बू को क्या पहचानेंगे आप, ये क्या है? ये उहिब्बु मैम, ये फेल है। फेल है। ठीक है। तो अभी ज्यादा डिटेल में तो आपने इसको चूंकि नहीं पढ़ा, तो जी, बस ठीक है, फेल है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं मोहब्बत मोहब्बत करता हूँ। करती हूँ या करता कर, हूँ। ठीक है। जी, अच्छा, अना ओ हिब्बू क्या तर्जुमा करेंगी? मैं मोहब्बत करती हूँ हम्म। अच्छा, अभी किससे? वो आगे पढ़े। मेरे हम्म। अब्बू और मेरी अम्मी से। मेरी अम्मी हम्म। से बोल सकते ठीक हैं है। मैम। मैं अपने अम्मी और अब्बू से मोहब्बत करती हूँ। जी, हम फेल का तर्जुमा हमेशा लास्ट में लेके जाते हैं ना। जी, ठीक है, पहले करेंगे मुब्तदा का, जी, फिर मैं करेंगे अब। हम। जी, अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ओ हिब्बू में भी आपको एक जमीर छुपी हुई है, हुआ की। ठीक है। अभी तो आपने जी, माजी पढ़ा है ना, माजी पढ़ा। जी, सलासी मुजरद पढ़ रहे हैं, ये भी माजी का सीगा है लेकिन मजीदुन फी में से है। तो ये भी माजी का पहला वो वाहिद मुतकल्लम का सीगा है। तो इसमें जो जमीर छुपी हुई है ना, वो है अना। और यहाँ हाँ अना जो हाँ, है जी मानना समझ है, में आ हाँ। गया ना? ठीक है। जी, तो अना को हमने अभी हम अलग कर देंगे, और ओ हिब्बू तो अंदर व मैम उम्मी, जमीन अंदर छुपी हुई है, तो फिर ये शुरू में क्यों आई अना? यही यही बताने लगी मैं आपको। अभी आप अना को भूल जाए। ठीक है। जी, आप समझे कि जी, अना नहीं है, और आप इस इसको देखें। ठीक है। ये जी, तो हिब्बू में जमीर, फाइल जो है वो जमीर की सूरत में है अना। जी, फाइल हमारा है अना। ठीक है। अभी जी मैम, अभी व उम्मी ये मफूल की जगह के ऊपर आ रहे हैं। जी, क्योंकि अगर आप काम कर रही हैं ना, आप प्यार कर रही हैं, किससे कर रही हैं? अम्मी जी, और अब्बू से।
तो वो मफूल बन जी गए। ठीक है, ये जुमला फेलिया बन गया, जी मैम। ये जुमला फेलिया बन गया। अब अना मुब्तदा है, उसके लिए जुमला फेलिया पूरा खबर बन गया। जी समझ आई? जी मैम। अच्छा, अब क्या अना होता के है? लिए अना के लिए पूरा पूरा जुमला खबर बन गया। खबर खबर बन गया। जी ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि मुब्तदा के बाद जो खबर है उसमें जुमला भी आ सकता है। जी अभी तक हाँ हम हाँ। मुरक्कबात को लाके पढ़ रहे थे ना, कि कोई भी मुरक्कब आ रहा था उसकी जगह के ऊपर मुरक्कब जारी जी आ गया, मुरक्कब इशारी आ गया, मुरक्कब इजाफी आ गया। ठीक है, तो हमने इसको जी खबर बना दिया, मुकाम खबर बना दिया, मुतल्लिक के खबर बना दिया। अब यहाँ हमने देखा कि एक जुमला, पूरा जुमला फेलिया खबर की जगह के ऊपर आकर, चूंकि खबर की जगह पर आ रहा है वो जुमला, तो हमने उस पूरे जुमले फेलिया को खबर बना दिया। ठीक है। जी मैम। अच्छा, दूसरी बात आपको बताऊं, आपने कहा कि हिब्बू ओ हिब्बू में भी अना है, तो फिर शुरू में क्यों आया? तो जब हम जुमला फेलिया को जुमला इसमिया बनाना चाहते हैं, तो फिर फाइल को निकाल के हम बाहर रख देते हैं। जी ठीक है, तो तो ये जुमला इस इसमें बन गया। अब ये जुमला इसमिया बन गया, चूंकि ये इसम से शुरू हो रहा है, तो इसलिए ये जुमला इसमिया बन गया। अगर हम इसमें से ये निकाल देते हैं, तब भी हम तर्जुमा यही करेंगे ना, कि मैं अपने अम्मी अब्बू से मोहब्बत करती हूँ। ठीक है, जुमला इसमिया जो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर होता है, उसकी स्टेटमेंट चेंज नहीं होती है, बड़ी सॉलिड होती है। तो इसलिए जब जी हमने कोई बात करनी होती है, तो फिर हम उसको जुमला इसमिया में करते हैं। आपने किसी बात पे जोर देना है ना, तो फिर आप उसको जी जुमला इसमिया में ले आते हो। उसमें क्या होता है कि हम फाइल को निकाल कर शुरू में ले आते हैं। जी जैसे यहाँ हमने देखा कि अना जो है वो जुमले के शुरू में आ गया, तो आपका ये जुमला इसमिया बन जी गया, वरना ये जुमला फेलिया था। ठीक है, इसी पैटर्न पर ये आपका जी अगला जुमला भी है, सेम पैटर्न है। पढ़िए। जी मैम। व उहिब्बु अखी व उख्ती। हम्म और अपने अपने भाई और बहन हम्म मैं अपने भाई और बहन से मोहब्बत करती हूँ। बिल्कुल ठीक, देखिए सेम पैटर्न। अब यहाँ पर चूंकि वाव आतफा आ गया ना, जी मैम। तो वाह। हमें दोबारा दोबारा से अना लाने की जरूरत नहीं थी। जी वाव मतलब। आतफा का मतलब, अतफ का मतलब ये होता है कि जो पिछली बात हमने की है, वो बात हमारी आगे कंटिन्यू हो रही है। जी जी, ठीक है। समझ अच्छा, में एक और भी हम, ठीक है, वाव आतफा से पहले कोई इस्म होता है या कोई जुमला होता है, जी वाव आतफा से पहले कोई इस्म होता है या कोई जुमला होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, अ, ठीक है, अ, उसको जी हम कहते हैं अ- मातूफ इलैह। मातूफ इलैह। जी मातूफ इलैह, जो पहला होता है ना, उसको हम कहते हैं मातूफ इलैह। ठीक है, जी और उसके बाद आता है, मातूफ। हम्म, उसके बाद आता है मातूफ, नहीं, मातूफ तो दोनों ही होते हैं। जी ठीक है, एक मिनट में लिख दूँ जरा यहाँ पर। ये हो गया मातूफ इलैह। जी ठीक है, जी और मैम। जो वाव आतफा के बाद वाला जो हिस्सा है, उसको हम सिर्फ कहेंगे मातूफ। और जी मातूफ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि अगर आपकी बात ऐसी है कि जिसमें आपको एक आपका लंबा जुमला है और आप उसको उसके ऊपर अतफ करते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर हम उसको मातूफ अव्वल, मातूफ दोम, इस तरह से करके हम उसे जो है वो जी जुमले को सेट बैठा लेते हैं। ये सिर्फ मातूफ होगा। और इससे पिछले वाला जो जुमला जिसके ऊपर ये अतफ हो रहा है, तो वो उसको हम कहेंगे मातूफ इलैह।
ٹھیک ہے، دونوں کا آپس میں تعلق بن رہا ہے، اور یہ پورا جملہ اب ہمارا کیا بن گیا شروع سے لے کے آخر تک؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. بالکل صحیح. اب پورے جملے کا ترجمہ کر دیجئے. میں اپنے ابو اور امی سے محبت کرتی ہوں اور میں اپنے بھائی اور بہن سے محبت کرتی ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمارا آج کا جو لیسن تھا یہیں تک تھا، ٹاسک ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. کل ہم نیکسٹ ویک ہم اس کی جو تمرین ہے وہ کریں گے انشاءاللہ، دونوں کر لیں گے مکمل انشاءاللہ تعالی. کلاس کو میں اینڈ کرتی ہوں، اور باقی یہ بھی آپ جائیے گا مت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ.